So today we are going to start a new chapter. The name of the chapter is The Story of Amrita. And who is Amrita? Amrita is a girl. So we are going to know about her story. So let us start. So I'm going to read. So have a look. This is a true story from long ago, almost 300 years ago. In a village called Khejali lived Amrita. Khejali village is near Jodhpur in Rajasthan. The village got its name because of the many Khejali trees that grew there. So what the first paragraph says, we are going to know about it. But before I tell you about what this first paragraph want to say, I want that you should know yourself. Pause the video and know yourself what this first paragraph want to say. It's very easy, you can do that. Comprehend the first paragraph. Okay, I hope you have done that. So ये एक सच्ची कहानी है. This is a true story from long ago. ये एक बहुत ही एक सच्ची कहानी है, ठीक है. बहुत पुराने समय की एक सच्ची कहानी है. ऐसी नहीं कि झूठी कहानी है, ऐसी घटना नहीं है. सच्ची कहानी है. ऑलमोस्ट 300 ईयर्स अगो, 300 साल पहले की. आज है साल 2020, तो 300 साल पहले की कहानी है. आज से 300 साल पहले की कहानी है. और किस गांव की कहानी है? एक गांव, विलेज की कहानी है. उस गांव का क्या नाम था? खेजड़ली. उस गांव का नाम था खेजड़ली. जहाँ पे कौन रहती थी? अमृता रहती थी. अमृता कौन से गांव में रहती थी? अमृता रहती थी खेजड़ली गांव में. और ये उसी गांव की कहानी है और 300 साल पुरानी एक सच्ची कहानी है. खेजड़ली विलेज इज़ नियर जोधपुर इन राजस्थान. ओके, तो खेजड़ली विलेज जो है जोधपुर में है और राजस्थान में है. फर्स्ट राजस्थान. व्हाट इज़ राजस्थान? राजस्थान इंडिया का एक स्टेट है. ओके, राजस्थान इज़ द स्टेट ऑफ इंडिया. वी लिव इन बिहार स्टेट. सो फर्स्ट वी विल लुक इंडियाज़ मैप. हम लोग इंडिया का एक मैप देखते हैं. लेट अस सी. ओके, आई एम गोइंग टू जूम इट, सो वॉच इट केयरफुली. ओके, so as you can see, this is the map of India. This is the map of India. You all have seen this. Okay, so have a look. So where are we now? हम लोग कहाँ पे हैं presently? We are here. Here is Bihar. Okay, I'm going to make it more bigger so image will be more clear. So let me zoom it more. Okay, it's now, I think it's enough. So we can see the map here clearly. Let me use my lens. Okay, so where are we? We are here. We are in Bihar, and here is Bihar. So where is Rajasthan? Rajasthan is here. Here is Bihar. Rajasthan is here. Here is Rajasthan. Okay, so here is Rajasthan. As we can see, Rajasthan is here. Okay, Rajasthan, as you can see here. And where is Jodhpur? Look, here is Jodhpur. Jodh, Jodhpur. So it is very far from Bihar, isn't it? बिहार से काफ़ी दूर है. So here is Bihar, here is Jodhpur, and here we are in Bihar. So and Rajasthan. So anyone knows the capital of Rajasthan? If you know the capital of Rajasthan, वीडियो के कमेंट बॉक्स में उसका कैपिटल का नाम बताओ मुझे. ओके, सो राजस्थान का कैपिटल का नाम बताएंगे आप वीडियो के कमेंट में. सो नाउ इट इज़ द स्टेट ऑफ बिहार. ये हमारा बिहार स्टेट है. अब यहाँ पे राजस्थान, यहाँ पे जोधपुर है. अब कोई जानता है कि राजस्थान में क्या है? राजस्थान में एक बहुत बड़ा डेजर्ट है, एक बहुत बड़ा रेगिस्तान है. उस रेगिस्तान को क्या नाम दिया गया है? वी कॉल दिस डेजर्ट थार डेजर्ट. ओके, हाउ अ डेजर्ट लुक्स. डेजर्ट कैसा लगता है? पियर. हाउ अ डेजर्ट लुक्स. डेजर्ट कुछ ऐसा होता है. ओके, वी कैन सी इन द पिक्चर. ये एक डेजर्ट है और इस डेजर्ट का नाम है थार डेजर्ट. ओके, तो ये हमारे राजस्थान में है. यहाँ देख सकते हैं काफ़ी सारे सैंड है और ज़्यादा प्लांट और ट्रीज़ तो है नहीं. यहाँ बारिश बहुत कम होती है, पानी की काफ़ी किल्लत होती है. ओके, यहाँ खेती भी ज़्यादा नहीं हो पाती है, तो काफ़ी ज़्यादा वाटर की शॉर्टेज होती है. प्लांट्स ज़्यादा ग्रो नहीं करते यहाँ पे, ट्रीज़ नहीं होते, बारिश नहीं होती है. और ओके, तो यहाँ पे ये थार डेजर्ट है. एक और इमेज देखते हैं. लेट अस सी वन मोर इमेज. Okay, let me enlarge it. So here is the desert, and desert may mainly which animal we use to move from one place to another? We use mostly camels. Okay, camels are also known as sheep of the desert because camel can run on sand very easily. We know it. So this is the map, and here is the Jodhpur. So now it's maybe clear where is Jodhpur. Okay, so I'm going to make it small. So now we know where is Rajasthan. So now come to let's move further. The village got its name because of the many khejdi trees that grew there. अब village का नाम खेजड़ी क्यों पड़ा?
क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे खेजड़ी पेड़ जो है उगते हैं, वहाँ पे बहुत सारे खेजड़ी पेड़ उगते हैं। अब खेजड़ी पेड़ शायद आप लोगों ने देखा नहीं होगा। खेजड़ी पेड़ जो है इज़ अ ट्री विच इज़ मोस्टली फाउंड इन डेजर्ट एरिया, जो रेगिस्तानी इलाके होते हैं वहीं पे मेनली ये पेड़ पाया जाता है। और कैसा दिखता है खेजड़ी पेड़, चलो एक पिक देखते हैं इसका। ओके, खेजड़ी पेड़ कैसा दिखता है, लेट अस सी। ओके, एज वी कैन सी दिस इज़ अ खेजड़ी ट्री, स्क्रीन पे देख सकते हैं ये है खेजड़ी का पेड़। ओके, तो एज वी कैन सी खेजड़ी का पेड़ देख सकते हैं डेजर्ट एरिया में ग्रो करता है, और यहाँ पे खेजड़ी गांव में यही पेड़ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, जिस वजह से इसका गांव का नाम क्या रखा गया, खेजड़ी नाम रखा गया। और देख सकते हैं ये खेजड़ी पेड़ के देख सकते हैं ये काफ़ी मतलब कि घना भी है, काफ़ी शैडो भी पड़ता है। ओके, और ये डेजर्ट में ग्रो करता है। ओके, चलो एक और इमेज देखते हैं खेजड़ी ट्री का, इट विल बी मोर क्लियर। ओके, लेट अस सी। सो हियर इज दिस वन। ओके, तो देख सकते हैं खेजड़ी पेड़ कैसा है। ओके, वी कैन सी। तो इस तरह के पेड़ डेजर्ट में देख सकते हैं, डेजर्ट है ना, और इस तरह के पेड़ जो है रेगिस्तान में काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं खेजड़ी के पेड़। और खेजड़ी के पेड़ के बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, काफ़ी सारे फ़ायदे भी हैं। लेट अस नो व्हाट आर द बेनिफिट्स, वी आर गोइंग टू नो। सो हियर द खेजड़ी ट्री इज फाउंड मेनली इन डेजर्ट एरियाज। खेजड़ी के पेड़ ज़्यादातर डेजर्ट एरिया रेगिस्तान में पाए जाते हैं। इट कैन ग्रो विदाउट मच वाटर, ये बिना पानी के ही बहुत आगे बढ़ सकता है। दिस ट्री डज नॉट नीड मोर वाटर, इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इट्स बार्क इज़ यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन, और इसको जो बार्क होती है यानी कि छाल जो होते हैं, जैसे छाल कहते हैं, जैसे पेड़ का एक ट्रंक होता है, पेड़ का ट्रंक होता है ना, तो पेड़ का जो आउटर लेयर होता है ना, इसको छाल कहते हैं, बार्क कहते हैं। ठीक है, बार्क कहते हैं इसको। ठीक है, बार्क कहते हैं। इसका इस्तेमाल क्या करने के लिए बनाया जाता है, मेडिसिन बनाने के लिए, दवाइयाँ बनाने के लिए किया जाता है। ओके, और चलो जानते हैं और क्या कह रहा है। पीपल को कैन ईट इट्स फ्रूट्स, इसके जो फल होते हैं इसको लोग पकाते हैं और खाते हैं इसके फ्रूट्स को। इट्स वुड्स इज सच दैट इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय इंसेक्ट्स, और इसकी लकड़ियाँ जो हैं इसमें दीमक नहीं लगती, टर्माइट्स। देखते हैं कि लकड़ी के सामान में दीमक लग जाती है, टर्माइट्स लग, लेकिन इसमें दीमक नहीं लगता है। ओके, नॉट इन्फेक्टेड बाय इंसेक्ट्स, दीमक नहीं लग सकता है इसकी लकड़ियों में। और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है खेजड़ी ट्री के बारे में चलो जानते हैं। एनिमल्स इन दिस एरिया ईट द लीव्स ऑफ द खेजड़ी, और इस एरिया में जितने भी एनिमल्स होते हैं वो इसके लीव्स को, पत्ते को क्या करते हैं, दे ईट, वो खाते हैं। एंड चिल्ड्रन लाइक टू प्ले इन इट्स शेड, और ये पेड़ काफ़ी भी घना है, देख सकते हैं डेंस भी है, काफ़ी फैला हुआ है। तो पेड़ जो शेड है, जो छाया है, उसके नीचे बच्चे खेलते भी हैं। ओके, सो नाउ इट्स मे बी क्लियर अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ खेजड़ी ट्री। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू मेक इट स्मॉल। So now let's move further. The people of this village took great care of the plants, trees and animals. अब यहाँ के गांव के लोग जो है, खेजड़ी के गांव के लोग जो है, वो बहुत ही ख्याल रखते हैं। They take great care of plants, यहाँ के पेड़ पौधे और जानवरों का बहुत ख्याल रखते हैं। Goats, deers, hares and peacocks roamed fearlessly there. और यहाँ की जो बकरियाँ हैं, हिरन है, खरगोश है, मोरनी है, वो रोम मतलब घूमते हैं, बिना डर के, आज़ादी के घूमते हैं आसानी से। ओके, द पीपल ऑफ द विलेज रिमेंबर वॉट देयर एल्डर्स यूज टू टेल देम, और गांव के लोग ये याद रखते हैं कि उनके बड़ों ने उनको क्या सिखाया था। एल्डर्स मतलब बड़े, गांव के लोग जो है ये इस बात को याद रखते हैं कि उनके बड़ों ने उनको क्या सिखाया था, उनके बड़े ने उनको क्या सिखाया था। दे यूज टू से, अगर पेड़ हैं तो हम हैं, तो उनके बड़े लोग क्या कहते थे गांव के लोग कि अगर पेड़ हैं तो हम लोग हैं, अगर पेड़ नहीं तो हम लोग नहीं हैं। The plants and animals can survive without us, but we cannot survive without them. Plants और animals हमारे बिना जिंदा रह सकते हैं। सर्वाइव मतलब जिंदा रहना, विदाउट का मतलब के बिना। पौधे और जानवर हमारे बिना जिंदा रह सकते हैं, लेकिन हम यानी इंसान बिना जानवरों के, बिना पौधों के हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं। प्लांट्स तो अपना खाना खुद बनाते हैं। ओके, प्लांट्स को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें प्लांट्स की ज़रूरत है। तो प्लांट्स और एनिमल्स खुद से ज़िंदा रह सकते हैं, हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें ज़िंदा रहने के लिए हमें उनकी ज़रूरत है। हमें पेड़ पौधे चाहिए, जानवर चाहिए, तभी हम ज़िंदा रह सकते हैं। ओके, सो वी आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, बट प्लांट्स, ओके, दिस इज़ व्हाट वी हैव नो टुडे। एंड इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू नो मोर अबाउट खेजड़ी ट्रीज़, अगर आप खेजड़ी ट्रीज़ के बारे में और जानना चाहते हो तो आप स्क्रीन के राइट साइड में एक आई बटन है, आई बटन पे क्लिक करो, खेजड़ी ट्री के बारे में और तुम जान जाओगे इसके बारे में। ओके, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।